प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे 10 से 12 घंटे के नौमालूम बच्चे को अगवा कैसे किया जाता है। अगवाकार खातून कौन थी और वो कौन थी जो एक बच्चे की मां की कोख उजाड़ देती है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में ये वाक़या पेश आता है। सब्ज़ाज़ार पुलिस बच्चे को 20 रोज़ के बाद बाजियाब करवा लेती है। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। बच्चे को अगवा करने वाले केस में जो मुकदमे के मुद्दई हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं कि वाक़या किस तरह से हुआ, फिर पुलिस ने कैसे बच्चे को बाजियाब करवाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीर। अमीर साहब, क्या करते हैं आप? मैं एक अपना मसूल स्पिनिंग मिल है धागे वाली, उसमें काम करता हूँ। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 6 बच्चे हैं जी। ये 7वां बच्चा हमारा था। 7वां बच्चा था, बेटा था। हाँ जी। क्या हुआ, हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश हुई तो कैसे इसको अगवा कर लिया? थोड़ा सा ऊंची तकरीबन बोलिएगा। 1:30 बजे पैदाइश हुई है। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने दोपहर 1:30 बजे? नहीं जी, रात 1:30 बजे। ठीक है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया गैनी वार्ड में। ठीक है, गैनी वार्ड में ये औरत चली जाती है 10:15 पर। ठीक है। मुलजमा जो है? ये मुलजमा जो है वो 3-4 घंटे अंदर रही है। अच्छा, हर बेड पे चली गई है, हर बेड पे बातचीत करती रही है। और हमारे साथ जो बेड था ना, हाँ, उस पे बैठी रही है ये अच्छा, बड़ी देर। और मेरे घर वालों के पास कोई औरत नहीं थी। ठीक है। मतलब बेगम ਤੁਹਾਡੀ और बच्चा कल्ले सन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर की होया? फिर जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा, इस औरत ने मुलजमा ने फाड़ हाँ जी, लिया। हाँ जी। ठीक है, ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰਤ। ठीक है, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। हाँ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ठीक है, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੱਲਿਆ। अच्छा, ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਇਹਦੀ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ठीक है, ਜੂਸ ਲੈਣ ਗਈ, ਹਟ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚੜੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਈ ਜੂਸ ਲੈਣ। अच्छा। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ MS ਆ ਗਿਆ ਇਤਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਚਾਚਾ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਈ ਔਰਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 15 ਤੇ ਇੱਧਰ ਥਾਣੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 घंटे का था। 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਹੋਇਆ? 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ? ਬੜਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਹਾਂ, ਲਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ 19 ਸਾਲ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਪਾਂਜ, अच्छा ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अच्छा इस वजह से नया काम किया। हाँ ये थे जी मुकदमे के मुद्दई जिनका ये कहना था कि मुलजमा जब बच्चे की पैदाइश हुई और 10 घंटे का तकरीबन बच्चा था और 10 घंटे के दौरान उसने इतनी इनके साथ ताल्लुक़ बना लिया कि इसकी वाइफ जो है बच्चे की माँ उसके लिए खाना मंगवा रही है, जूस मंगवा रही है और उसकी कुछ थोड़ी सी तबीयत नासाज थी तो देखभाल करती रही। लेकिन जब ये शोहर इसका और मुकदमे का मुद्दई वापस आया कुछ खाने पीने की अशिया लेकर, तो उसके बाद पता चला कि ना वहाँ पे वो खातून है जो मुलज़मा है और ना ही बच्चा वहाँ पे मौजूद है। और जब पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया और पुलिस की जानिब से मुद्दई को ये बताया गया है कि वही पुराना रवायती तरीक़ाकार है बच्चों को अगवा करने का कि उसकी औलाद नहीं थी, अगर बच्चे थे तो एक माजूर था और एक बेटी थी, तो ख़ुद उसने बच्चे को अगवा किया। अब मज़ीद तफ्तीश जो है वो पुलिस मज़ीद करेगी कि कहीं इससे पहले भी इस खातून ने कोई इस तरह का कारनामा सर अंजाम तो नहीं दिया है। ये है जी वो माँ जिसका लखते जिगर, चंद घंटों का लखते जिगर जो है वो एक खातून हॉस्पिटल से अगवा करके ले जाती है। अगवा की वारदात किस तरह से होती है ये इस माँ की ज़ुबानी सुनते हैं। बहन की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਕਲਸੂਮ थोड़ा माइक करीब कर लो। ਕਲਸੂਮ ਕਲਸੂਮ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 7ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਕਿਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਲੇ ਗੈਨੀਵਾਰ ਚ ਗਏ ਨਾ ਉਸਲੇ ਹੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਚ ਬਾਹਰ ਚ। ਅੱਛਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਅਗਲੇ ਬੈਠ ਤੇ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੁਬਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇਹ ਮਖਾਮਨਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਉੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਤੇ ਪਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ? ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ? ਬਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫੜਾਇਆ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਦੀ ਉਰਕਾ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੈਂਪਰ। ਪੈਂਪਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵਾਹਵਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਪਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਟੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਏ। ਇਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲਈ ਚੱਲਣੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਫੜ ਲਈ ਤੂੰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਕਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਜੇ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪੀ ਹੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੂਸ ਲਿਆਣੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ, ਮੁੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ? ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਪਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਾਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਈ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਾਈ ਦੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜ ਗਏ। 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਚਲੇ ਗਏ ਭਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਕਦੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਆਵੇ, 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਕੈਮਰੇ, ਹਾਂ। ਖੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਰਹੀ ਕਦੇ ਜਾ ਰਹੀ, 2-3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਿਆ? 22 ਦਿਨਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹਾਂਜੀ, ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਚੈੱਕ ਠਾਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਲਬ ਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੇ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾਏ ਸਨ ਉਹੀ ਪਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ? ਹੋਰ ਪਾਏ ਨੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਏ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ, ਐਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਕੜਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ 2। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੋਈ? ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਰੋ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕੇ। ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 3 ਬੇਟੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੌਥਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਬੜੇ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮੇਂ ਤਾਂ। ਖਾਨਦਾਨ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। होश आ गई? ਹਾਂਜੀ ये है जी वो माँ जिसका लफ्ते जिगर एक खातून अगवा करके ले जाती है और हमदर्दी जताते हैं इस तरह के लोग यकीनन जब बच्चा चंद घंटे का हो और माँ जो है वो उसकी तबीयत भी नासाज होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बेचारी माँ के साथ कोई और जो है तीमारदारी के लिए भी नहीं था, अकेली खातून थी और उसका शोहर था। और तीसरा चंद घंटे का बच्चा था, लेकिन मौका पाकर और उस मुलज़िमा ने जो है वो अपना मकसद जो है वो पूरा हासिल कर लिया और बच्चे को अगवा करके वहाँ से ले जाया। सब्ज़ादार इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बच्चे को अगवा करने वाली मुलज़िमा को गिरफ़्तार कर लिया है। फौजिया इसका नाम है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और अब ये बहाना बना रही है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये खड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के मुलज़िम को बिठाकर कभी भी उससे बात नहीं की जाती है। लेकिन इंसानी हमदर्दी के तहत इसको हमने कुर्सी पे बिठाया कि ये असल वाक़या बता सके कि इसने चंद घंटे का बच्चा जो है किसी का लख्ते जिगर अगवा किया। क्या नाम है तुम्हारा? फौजिया। फौजिया की कीता ही है बच्चे गवा करनी है तू? पहले किन्ने बच्चे गवा कीते नहीं? नहीं भाई मैं कोई नहीं बच्चा गवा ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ? ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ
ਗਈ ਸਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ? ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਬੱਚਾ? ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੀ ਸੀ ਦੂਸਰਾ? ਦੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਔਲਾਦ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ? ਬਸ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ? 15 ਸਾਲ ਦਾ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ? 19 ਸਾਲ ਦੀ। 19 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ? ਉਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਔਰਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਗੱਲ। ਬਸ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਮੈਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ? ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ਾਦਾਰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹਸਪੀਟਲ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਿੰਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੇਟੀ ਅੱਛਾ। ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ? 20 ਦਿਨ। 20 ਦਿਨ। ਤੇ 20 ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਕੀਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ? 2। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਖਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਖਾਵੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆਉਣ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਸਨ? ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਮਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਸ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੀ। ਖਾਵੰਦ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕਹਿ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੂਸਰੀ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬੇਟਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾ। ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ। ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ भाई, बस मेरे को बोलिया जाता बस। ये है जी वो मुलजमा जिसने चंद घंटे के बच्चे को अगवा किया, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये कहती है कि इसका शोहर जो है इसको कुछ दफ़ा, चंद दफ़ा जो है इसके साथ झगड़ा हुआ, और ये ताना देता था कि वो दूसरी शादी कर लेगा क्योंकि इसका एक बेटा है जो माजूर है और एक बेटी थी। लेकिन मुलजमा भी इस बात का एतराफ़ करती है कि वो एक सिर्फ बयान की हद तक था, लेकिन अमली तौर पर इसका शोहर दूसरी शादी करने वाला नहीं था। अब मुलजमा जो है वो बिल्कुल इनकार करती है अपने उस जुर्म से कि उसने चंद घंटे के बच्चे को अगवा किया, और अगवा करने के बाद एक सब्ज़ाज़ार के ही हॉस्पिटल में वो
बच्चे को लेकर जाती है और अपनी बेटी और अपने शोहर को फ़ोन पे इतला देती है कि इसके घर में जो है बेटा पैदा हुआ है। हॉस्पिटल में ये रूटीन का चेकअप करवाने के लिए आई थी और यहाँ पे एक बेटे की पैदाइश हुई है। बच्चे को लेकर इसका शोहर और बेटी खुशी खुशी घर जाते हैं और चंद रोज़ के बाद उस बच्चे का जो है हकीका भी किया जाता है और बकरे ज़िबा किए जाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाकर खाना भी खिलाया जाता है और ये बड़े फ़ख्र के साथ कहती है कि इसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है। लेकिन इस जुर्म का सिर्फ इसको पता होता है कि इसने एक बच्चा जो है एक मासूम और सादा लो माँ से जो है अगवा किया, उसको अपनी बातों में उलझा के अपनी हमदर्दी जतला के उसका बच्चा लेकर वहाँ से हॉस्पिटल से फ़रार हो जाती है। ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे मुलज़िमा बच्चे को अगवा करने के बाद लाती है और यहाँ से अपने घर वालों को फ़ोन करती है कि उसके यहाँ बच्चे की एक पैदाइश हुई है। घर वाले आते हैं और मुलज़िमा और बच्चे को यहाँ से लेकर रिक्शे में सवार होकर घर चले जाते हैं। पुलिस इस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकालती है और उसकी मदद से मुलज़िमा तक पहुँचने में सबसे अहम शवाहिद इस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज थी। SHO सब्ज़ाज़ार सैयद हमाद है जी हमारे साथ। बच्चा चंद घंटे का अगवा होता है, वारदात किस तरह से होती है, इब्तदाई तौर पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो हमाद साहब ही दर्ज करते हैं। हमाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमाद साहब चंद घंटे का बच्चा जब अगवा होता है तो यकीनन मुतलका पुलिस स्टेशन का जो सरबराह जो SHO होता है उसके लिए बड़ी परेशानी लाहक हो जाती है। जब 15 पे कॉल चली तो फिर क्या हुआ, किस तरह से आप पहुंचे, रिस्पॉन्ड किया आपने वहाँ पे? सर 6 दिसंबर 2022 को तकरीबन 2 बजे के करीब 15 पे कॉल होती है कि बच्चा अगवा हो गया। चूँकि हिरीस कॉल थी, सेंसिटिव मैटर था, फ़ौरन मैंने यहाँ से टीम के साथ मूव किया है और सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है मुल्तान रोड पे वाक़या वाला। ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं मिल्स में काम करते हैं उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स बने होते हैं, अपना ट्रीटमेंट वगैरह इधर से करवाते हैं। ये जो फैमिली थी ये फूल नगर से बिलोंग करती थी, वहाँ से आई हुई थी। रात तकरीबन ये अगले दिन एक दिन पहले यहाँ पे एडमिट हुई है। रात 2 बजे डिलीवरी हुई थी और डे टाइम 1 बजे के करीब ये बच्चा वहाँ से उठा लिया गया। ठीक है। तकरीबन 11 घंटे इसकी उम्र थी उस वक्त। एक औरत आती सुबह जो इनको बातों में लगाए रखती 4 से 6 घंटे इनके साथ। हमने वहाँ से CCTV फुटेजेस है वो वहाँ से निकलवाई हैं, वहाँ के स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके। तो औरतों ने नकाब पोश थी, ब्लैक बुर्का उसने पहना हुआ था, स्कार्फ वगैरह लिया हुआ था। इसको इंटाइसमेंट के थ्रू या कह रहे कि जानता दे के इनसे बच्चा वो ले जाती है। तो एक किस्म का ये बड़ा सेंसिटिव और टेस्ट केस था। तो तमाम ऑफिसरान जिनके नोटिस में दिया हमने, डॉक्टर हनान साहब हमारे SP साहब हैं, डॉक्टर जतमीर साहब जो इन्वेस्टिगेशन के SP हैं, हमजा मान साहब जो ऑपरेशन के SP हैं और सीनियर क़यादत जितनी भी DAV ऑपरेशन साहब, अपना अफजाल कौसर साहब, इसी तरह इन्वेस्टिगेशन विंग से। तो फ़ौरन टास्किंग हुई, टीम्स बनी, वहाँ पे कैमरा की ट्रैकिंग स्टार्ट की हमने, बैक ट्रेल किया, फॉरवर्ड ट्रेल किया कि औरत आई कहाँ से है और गई किस तरफ से है। तो हमें जो लगा कि डेलिबरेटली उसने पुलिस को डेविएट करने की कोशिश की है। ठीक है। जहाँ पे उसका घर था उस तरफ से नहीं आई थी वो। अच्छा। उसने रूट चेंज करके आई थी वो। ठीक है। तो वहाँ से उसने एक रिक्शा लिया किराए पे और वो खाड़क चौक में उतरती है। ठीक है। इसके बाद आगे केस बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है कि किस तरफ हो गई है। एक उसकी अपीयरेंस हुलिया वगैरह क्लियर नहीं था क्योंकि नकाब में थी, व्हील ओढ़ा हुआ था उसने। सेकेंडली अपना आगे कैमरा की ट्रैकिंग बंद हो जाती है। ठीक है। और हम फिर अपने तौर पे लोकल इन्फॉर्मेशन के थ्रू लोकल कैमरास जितने हैं इसमें यू कैन से कि तकरीबन 150 के करीब हमने कैमरास देखे, विज़िट किए सारे। ठीक है। और ताकि कोई उसका क्लू मिल जाए। ठीक है। इसके बाद फिर हमने कोई क्लू नहीं वहाँ से मिला। ठीक है। इसके बाद हमने लोकल तौर पे पास ही हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल सब्ज़ाज़ार में, वहाँ पे जाके जस्ट कहा कि छोटा बच्चा है, कोई ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर उसकी तबीयत ख़राब होती है, अगर कोई लोकल औरत आती है, उसकी तस्वीरें हमने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की, मतलब उनको दी कॉन्फिडेंशली, तो आपने हमें ज़रूर इंटीमेट करना है। ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि क्यों ना हम इनके कैमरे ही चेक कर लें। ठीक है। पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे आई हो। ठीक है। तो वो औरत वहाँ पे वाकई आई हुई थी, कैमरों में आ गई, सेम अपीयरेंस की औरत। ठीक है। तो वहाँ से उसने अपने घर वालों को बुलाया, ठीक है,
और घर वालों को बुलाने के बाद उसका जो शौहर है वो आता है, उसकी एक बेटी 19 साल वो आती है और बड़े हैप्पीली वो बच्चे को रिसीव करते हैं। और जैसे उसने ऐसे एक्टिंग की है वहाँ पे जैसे बच्चा उसी ने जाना हुआ है। अच्छा वो चले जाते हैं और जिस रिक्शा पे बैठ के गए हैं अनफॉर्चुनेटली उसका भी नंबर नहीं था। अच्छा तो लेकिन वहाँ से हमें एक क्लू मिलता है कि उसके पीछे ना एक जस्ट एक लफ्ज़ लिखा होता है सोनी ऑटोज़। ठीक है ठीक है, वहाँ से हमने फिर लाहौर के अंदर ढूंढना शुरू करी सोनी ऑटोज़ वाले कौन है। ठीक है उन तक पहुँचे हैं सोनी ऑटोज़ वालों के पास, वहाँ से रिक्शे के ओनर के पास जिसके पास आगे रिक्शा गया है। ठीक है, फिर वो बंदा भी वहाँ पे एक पार्किंग स्टैंड में खड़ा था रिक्शा, वहाँ पे हमने ड्यूटी लगाई सिक्योरिटी। तो वहाँ पे वो बंदा आता है, उसको हम चेज़ करते हैं, उससे पूछते हैं, वो भी हमें बेगुनाह जैसे उसने एक सवार उठाया और एक जगह ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसकी याददाश्त ने काम किया, उसने बताया कि मैंने यहाँ से पिक किया था और यहाँ पे ड्रॉप किया था, जहाँ पे ड्रॉप किया वहाँ पे टीम्स लग जाती हैं। तो रैंडमली वो बंदा कहीं दूध दही लेने बाहर आता है, वही जो शौहर था वहीं से हमें सक्सेस मिली थी। उसको पकड़ते हैं, उसकी वाइफ को पकड़ते हैं, बच्चा भी रिकवर करते हैं सारी। इसके साथ CDR उसने डेलिबरेटली हॉस्पिटल की जो चिट या रसीद है वो 2 नंबर बनाई हुई थी, वहाँ पे असल ID कार्ड नहीं था लगवाया हुआ। अच्छा CDR वो में डेविएट कर रही थी जगह जगह से। ठीक है। लेकिन अफसरान न सिर्फ डेली बेसिस पे अपडेट्स ले रहे थे बल्कि हमें मुफीद जो डायरेक्शंस हैं, जो फैसिलिटेशन है वो भी मतलब हमें दे रहे प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। तो अपनी नीयत का ये थोड़ा अलहरा से केस था, क्योंकि डेफिनेटली एहसास और फ़िक्र ऐसे एलिमेंट्स हैं मैं कहता हूँ जो ना मनाज़र तक पहुँचा देती हैं चीज़ें। बिल्कुल अगर ये आपको मतलब हों तो एक औरत कसूर फूल नगर से आती है, बच्चा उसके यहाँ पैदा होता है और अपनी खाली गोद लेके वो चली जाती है। ठीक है, तो पुलिस को ऐसे ही था कि जिसका अपना बच्चा मिस हो गया। अच्छा हमारा साहब इसमें ये बताएं कि जब इस तरह की चंद घंटे के बच्चे के अगवा की कॉल चलती है तो डेफिनेटली जिस तरह से आपने कहा कि हीनियस क्राइम है, चंद घंटे का बच्चा जो है वो अगवा हो गया और आप फ़ौरन मौके पे पहुंचते हैं और तमाम चीज़ों को अपने शवाहिद जो है वो जमा करना शुरू करते हैं। मुलज़मा जो है वो एक इल्ज़ाम लगाती है कि उसने मुद्दइया की जो बेगम है, जो बच्चे की माँ है, वो अपनी मर्ज़ी से बच्चा उसको देती है। यकीनन चोर कभी भी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। अब वो एक जो है वो एक प्ली ले रही है, एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। तो ऐसा कुछ आपको इस जब पहुँचे पहली मरतबा मौके पे पहुँचते हैं तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता, कोई स्टाम्प को एफिडेविट होता और इस तरह की सूरत तो फिर वो FIR न करवाते। ठीक है, उनकी परेशानी से हमें पता चल जाता कि बच्चा वाक़तन इनसे मिस हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली झूठ पे मबनी है, वो वाक़तन इसको किडनैप करके ले गई है। ठीक है, तो झांसा दे के ले गई थी वो। और अच्छा अमान साहब ये बताएं कि जिस तरह आपने बताया कि आपके सीनियर्स जो है वो भी इस बारे में ज़ाहिर है वो हो गए कि 15 पे कॉल है और हीनियस क्राइम एक हो गया आपके मुतलका थाने में, सब्ज़ाज़ार के इलाके में। तो मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की वारदात होती है तो डेफिनेटली ये लाशौरी तौर पे बंदा ये ज़रूर सोचता है, ख़ासकर आप पुलिस ऑफिसर जो है वो ये सोचते हैं कि बच्चा अगर हॉस्पिटल से अगवा हुआ है तो कोई बेऔलाद कोई इस तरह से होगा, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई जानने वाला हो सकता है, वो हो सकता है। तो फिर आप इसकी तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से जो है वो करते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट रिस्पॉन्ड आपकी तरफ से ऑपरेशन विंग का होता है। जी। तो क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुनियादी तौर पे देखी जाती हैं? और दूसरा ये बताएं कि जो इस तरह के हॉस्पिटल, ख़ासकर सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो नहीं बेहतर होती, तो इसके लिए फिर ऑपरेशन विंग क्या करता है या आपको क्या करना चाहिए? इसमें एक चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको ट्रेल ही देखते हैं कि वो गए किस तरफ से हैं, किस तरफ को गए हैं। दूसरे नंबर पर इसकी जो प्रीवियस केसेस हुए होते हैं उनकी हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं कि उनमें मुहरक़ात क्या थे। ठीक है, डिफरेंट उसमें मुहरक़ात होते हैं। किसी जगह पे काले जादू वाले लोग सामने आते हैं। हाँ। किसी जगह पे जैसे जावेद केस था, वो मर्डर केस वाला, हाँ। डिफरेंट स्टोरी आती है नफ्सियाती तौर पे। हाँ। किसी जगह पे बेऔलादी का एलिमेंट सामने आता है, तो यहाँ पे भी इस तरह का कोई एलिमेंट था। एक ही बच्चा था उसका, फातरो लगल था, माजूर टाइप का, तो उसको कोई तानो तशनी थे कि इसको शायद डाइवोर्स हो जाए। हाँ। तो उसने एक कह लें कि जो सर से भी इंफॉर्मेशन सामने उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि उसने एक ड्रामा किया कि शी इज़ प्रेगनेंट, से बेबी कंसीव हुआ है। हाँ। 2 के वो 2.5 महीने बाद वो मिस कैरेज हो चुका था। ठीक है, लेकिन उसने घर नहीं बताया, हस्बैंड को नहीं बताया। ये एक ज़ाहिरी सी स्टोरी भी है, लेकिन इन चीज़ें अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मज़ीद चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जो आपने इन्वेस्टिगेशन जब पहले पहुंचे आप, तो जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है
उसके हवाले से थोड़ा बताएं कि क्या वजह होती है कि सरकारी हॉस्पिटल में इतनी लुक आफ्टर नहीं की जाती बनिस्बत प्राइवेट हॉस्पिटल्स के? अच्छा, इसमें ऐसे है कि हॉस्पिटल को ये नहीं पता था कि इसके लवाहिकीन जो 6 घंटे से उसके पास बैठी हुई वो समझते शायद इसी के लवाहिकीन में से है। ठीक है, वो चीज़ें उससे मैन्यूअली नहीं देखते, जैसे पुलिस वाले थोड़ा इंटरोगेशन टेक्निक्स होती हैं उस तरह से नहीं देखते। उसको ये होता है कि कॉमन पर्सन है, लवाहिकीन है, और लोगों के पीछे लोगों का आना एक रुझान होता है, ये नेचुरल बात है। ठीक है, तो लिहाजा उस अंदाज से उसको नहीं देखते। दूसरे नंबर पर ये है कि मैं समझता हूँ कि वहाँ हॉस्पिटल वालों को कसूर तो नहीं था, उन्होंने तो वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज करने के बाद बाहर बेंच पे ये वाक़या हुआ है, बिल्कुल गायनी वार्ड के बाहर। ठीक है, तो उसकी एडमिशन के दौरान ये इंसिडेंट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज होने के हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद ये वाक़या हुआ है। उसकी तबीयत थोड़ी अपसेट थी और मेडिसिन लेने के बहाने वहाँ बैठी हुई। ठीक है जी। और अंदर भी उसके साथ बातों में लगाया था, उस पर बहर भी। हमारे साहब, कोई इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ख़ासकर सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे अगवा हो जाते हैं, आवाम के लिए, लोगों के लिए और उन सादा लोगों के लिए जो लाहौर से बाहर से आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देंगे कि अपने नए पैदा होने वाले बच्चों को वहाँ पे किस तरह से हिफाजत करें? इस तरह के मुलज़म जो है उनके पास आ सकते हैं, ख़वातीन आ सकती हैं, क्या एहतियात करनी चाहिए उनको? कोई पैगाम देंगे आप? जी, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा और इसके अलावा जो उसके अपने लवाहिकीन होते हैं लोगों के, उसके अलावा किसी को वहाँ पे मिलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैं पुलिस के हवाले से, वर्किंग के हवाले से एक मैसेज दूंगा कि वो जो आयत है कुरान पाक की कि लई सल इंसान इल्ला मा सा वाली, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो सही करता है। या इकबालियत में से एक शेर भी है कि रंग हो या खिश्तो संग, चंग हो या हरफो सौत, मौज जज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नमूद। तो अगर आप स्पेसिफिक फ़ील्ड में या किसी भी फील्ड में खुसूसी तौर पे स्ट्रगल करते हैं, फोकस होके, फ़िक्र के साथ, एहसास के साथ, तो आप यकीनी तौर पे मनाज़िल तक पहुंच ही जाते हैं, मकसद को गेन कर लेते हैं। तो ये भी हमारी ड्यूटी के साथ साथ जहाँ पे ड्यूटी थी, मैं समझता हूँ कि पुलिस के ऊपर एक कर्ज़ था जो अल्हम्दुलिल्लाह बतरीक़े हसन अदा हुआ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्ज़ादार मोहसिन है जी हमारे साथ। इनसे पूछते हैं कि चंद घंटे के बच्चे को जब अगवा किया गया और ये बहुत मुश्किल केस था, किस तरह से बच्चे की बाजियाबी मुमकिन हुई, किस तरह से मुलजिम को, खातून मुलजिमा जो थी उसको किस तरह से गिरफ़्तार किया और तफ्तीश क्या कहती है अब तक की, ये सारी तफसील इनसे जानते हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन साहब, ये बताइए कि सब्ज़ादार थाने की हदूद में एक ऐसा वाक़या होता है कि जिसका बच्चा अगवा होता है हॉस्पिटल से और चंद घंटे का है, बड़ा मुश्किल है, कोई सबूत, कोई शनाख्त ना होना, और सीसीटीवी कैमरास की मदद से जो है आप 20-21 दिन में ही ना सिर्फ मुलज़िमा को गिरफ़्तार कर लेते हैं बल्कि बच्चे को भी बाजियाब करवा लेते हैं। तफसील से थोड़ा बताइएगा कि वाक़या हुआ किस तरह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर ऐसे हुआ है कि 6/12/2022 को तकरीबन कोई 2 बजे के राउंड अबाउट 15 की एक कॉल मौसूल होती है मोहम्मद अमीर नाम के बंदे की कि मेरा 14 घंटे का बच्चा जो है वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड से नामालूम मुलज़िमा जो है वो मेरी वाइफ को बरगला कर बातों में लगा के तो अगवा करके ले गई। फौरी तौर पे पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, SHO रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, हमारे जितने भी सीनियर अफसरान हैं, क्योंकि कॉल बड़ी हीनियस नौइयत की थी। एक नौमौलूद बच्चे का एक हॉस्पिटल के अंदर से अगवा हो जाना, ये एक बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या है। तो उसके वालिदैन की बड़ी बुरी हालत थी। गांव के रहने वाले लोग, मिल मज़दूर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आते हैं और उनका बच्चा जो है वो चंद ही घंटे बाद उनसे जुदा हो जाता है। तो ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या था। तो इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जितने भी सीनियर अफसरान हैं उन्होंने फौरी तौर पे टीमें तश्कील दी, ऑपरेशन की, इन्वेस्टिगेशन की और दीगर थाना जात से भी जो है वो मदद लेकर कि इसको हम जो है ना वो ट्रेस करें। वो हमने ट्रेस करना उसको शुरू किया तो वो औरत जो है वो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड से रिक्शे में बैठती है
और खाड़क नाला स्टॉप है मुल्तान रोड के ऊपर, वहाँ पे वो उतर जाती है। ठीक है। उसके बाद कहाँ जाती है वो मालूम नहीं हो पाता। हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज से मज़ीद वाज़ेह होता है कि 10:13 पे वो औरत अकेली हॉस्पिटल के अंदर इंटर होती है। उसने अपने आप को ऐसे कवर किया हुआ है, बुर्का पहना हुआ है, स्कार्फ लिया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, और वो डायरेक्टली जब हम तफ्तीश करते हैं, चेक करते हैं, तो गायनी वार्ड में जाती है। गायनी वार्ड में जितने भी नौमौलूद बच्चे हैं वो कभी एक बेड पे बैठती है, कभी दूसरे बेड पे बैठती है, कभी तीसरे बेड पे बैठती है। आइडिया बुनियादी तौर पे वो ये कर रही होती है कि मैं किस औरत को टारगेट करूं। ठीक है। उसमें ये इन लोगों को वो इसलिए टारगेट करती है कि एक तो ये लाहौर के रहने वाले नहीं होते, बातों बातों में वो इससे पूछ लेती है और 2.5 से 3 घंटे इसके साथ गुजारती है। ठीक है। और उस दौरान वो जैसे औरतें आपस में करती हैं, वो उससे बाकायदा तौर पे एक दोस्ती जो है ना वो बना लेती है। बच्चा के बारे में उसको कहती है जी बच्चा बड़ा प्यारा है आपका, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, तो आपके पहले कितने बच्चे हैं, वो सारी बातें उससे पूछती रहती है। उसके साथ वो चिमट जाती है, लगी रहती है। इसी दौरान वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसका मियाँ दवाइयाँ वगैरह लेके आ जाता है, और वो औरत इनके साथ ही हॉस्पिटल से बाहर निकल के तो वेटिंग एरिया में चली जाती है जहाँ से उन्होंने रिक्शे में बैठ के जाना होता है। उस औरत की चूँकि डिलीवरी हुई होती है अभी रिसेंट में, तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, तो खामद उसके लिए कैंटीन से कोई चीज़ लेने चले जाते हैं। कैंटीन थोड़े से फासले पे है। उस दौरान उस औरत को मौका मिल जाता है, वो कैंटीन में खाना लेने जाते हुए, क्योंकि रश आवर्स होते हैं, दोपहर का टाइम होता है, तो लेट हो जाता है, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी जो है ना वो अपसेट होती है, तो वो कहती है मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। वो बड़ा नादर मौका उसके पास होता है कि खामद भी नहीं है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वैसे भी वो उस पर एतमाद करती है। एक बैग उसके पास छोड़ जाती है। उस बैग की बाद अदा जब तलाशी ली तो उसमें एक फ़ेक नंबर लिखा हुआ था और बच्चों को खिलाने के कुछ 2-4 बिस्किट थे, इसके अलावा कोई आइडेंटिफिकेशन जो है वो वहाँ पे नहीं थी। ठीक है। तो वो रक्षा रोकती है, एक रक्षा रोकती है, वो नहीं रुकता, फिर दूसरा रक्षा रोकती है और चुप करके बैठ के तो वो निकल जाती है। ठीक है। खाड़क से आगे हम लोग थोड़ा सा ब्लाइंड हो जाते हैं। फिर हम जितने भी करीबी क्लिनिक हैं, प्राइवेट क्लिनिक, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चों का इलाज हो सकता है, या जनरल हॉस्पिटल जितने भी हैं, उन सब में भी हम लोग जो हैं वो हमारी टीमें ट्राई करती हैं। फुटेज की मदद से हम तस्वीर निकलवाते हैं, वो तस्वीर वहाँ देते हैं कि इस तरह की कोई औरत अगर इस तरह का बच्चा लेके आए तो आपने हमें जो है वो इन्फॉर्म करना। ये एक्सरसाइज चल रही होती है कि इंडस हॉस्पिटल सब्ज़ादार से हमें वकूए के दिन की फुटेज मिल जाती है। पता चल जाता है कि जो औरत वहाँ से बच्चा लेके गायब हुई है वो उसके बाद इंडस हॉस्पिटल सब्ज़ादार आई है। इंडस हॉस्पिटल में आके वो कॉल करती है, वो 2-3 कॉल्स करती है अपने मोबाइल फ़ोन से। फिर एक मर्द आता है, उसके साथ एक औरत आती है, कम उम्र खातून, और बच्चा लेके एक रिक्शे में बैठ के तो चले जाते हैं। ठीक है। रिक्शा सीसीटीवी फुटेज में क्लियर होता है, लेकिन रिक्शे का नंबर नहीं होता। ठीक है। वो हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रिक्शे का नंबर हमें नहीं मिल पाता। लेकिन रिक्शे के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो, जैसे आपको पता है, मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देते हैं लोग, पीछे नाम लिख देते हैं। मैन्युफैक्चर जो दुकान करती है, रक्षा बनाती है, वो अपना नाम लिख देती है। उसमें वो सोनी ऑटोज़ जो है वो दर्ज होता है वहाँ पे पीछे लिखा हुआ। हम सोनी ऑटोज़ की मदद से ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे रक्षा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे, हम तकरीबन सारे ही विज़िट करते हैं। एक जगह पे हमें सोनी ऑटोज़ जो है वो मिल जाता है। ठीक है। उनको हम रिक्शे की तस्वीर वाज़े होती है हमारे पास, वो कहते हैं जी बिल्कुल हमने इस टाइप के रिक्शे 2-3 तैयार किए हैं, लेकिन उनमें ब्लू बॉडी रिक्शा हमने एक ही तैयार किया है, और वो हमने फ़लाँ बंदे को जो है वो शबीर नाम का एक बंदा होता है जी, हमने उसको सेल आउट कर दिया था। शबीर को ट्रेस करते हैं, वो कहता है जी मेरा भांजा जो है वो रिक्शा चलाता है। वो उस भांजे को, रमज़ान अली को हम ट्रेस करते हैं, उस तक पहुँचते हैं। रिक्शा जो है वो हमें मिल जाता है। रिक्शे वाले को इंटेरोगेट करते हैं, वो बुनियादी तौर पे इन ड्राइव पे रिक्शा चलाता है। ठीक है। उसने कहा जी 6 तारीख को इन ड्राइव की राइड कोई 3 बजे के करीब मेरी बुक थी इंडस अस्पताल सब्ज़ादार की। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो राइड हो गई कैंसिल। तो मैं एमरजेंसी के सामने रिक्शा लगा के खड़ा हो गया कि कोई सवारी मिल जाए तो मैं वापस चला जाऊँ, जो रिक्शे वालों का रूटीन है। ठीक है। तो उसी दौरान बंदा आता है, उसने कहा जी ये 2 ख़वातीन हैं सवारियाँ, तो इनको आपने खाड़क नाले के करीब उतारना है। ठीक है। तो वो औरतें 150 रुपया किराए में उसके साथ बैठ जाती हैं, और वो बताता है कि उनके पास एक नौमौलूद बच्चा था। कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे जो है वो कहाँ पे उतारते हैं जी, वो जगह मुझे मालूम है। अब ये एक साइकी है कि मोस्टली जब इस तरह बंदा बड़ी कॉन्फिडेंस से जाता है, बच्चा भी उसके करीब होता है, तो मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि घर के करीब ही उतरें। ठीक है। हमने फिर उन गलियों से उसको ट्रेस करने की कोशिश की। उस मर्द की सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास थी, औरतों की भी थी। तो उस मर्द को हम जो है ना वो मुश्तबा एक को ट्रेस कर लेते हैं, उससे पूछते हैं, वो बताता है जी बिल्कुल मेरी बीवी जो है ना वो उसके पास बच्चा है, लेकिन वो तो मेरी बीवी का बच्चा है। अच्छा। लेकिन बहरहाल औरत को ट्रेस करते हैं, बच्चा रिकवर करते हैं, थाना लेके आते हैं।
और इसके ओरिजिनल वालिदैन को बुला के हैंड ओवर करते हैं, तो पता ये चलता है दौरान तफ्तीश के ये औरत जो है इसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं अगवाकार औरत के, फौजिया बीबी के 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 18-19 साल की और एक इसका बेटा है अच्छा 13-14 साल का, लेकिन वो टांग से थोड़ा सा मजबूर है, इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा सा मजबूर है। ठीक है। तो इसका खामन जो है ये कभी इसको मजाक में या सीरियस घरेलू जो लड़ाइयाँ हैं उसमें उसने कहा है कि मैंने अपना दूसरी शादी कर लेंगे। ठीक है। वो औरत इसी डिप्रेशन में, इसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के ज़रिए सर कि कहीं ये दूसरी शादी ना कर ले, और ये औरत जो है ये 3-4 बार प्रेग्नेंट होती है लेकिन हमल रहता है इसको किसी बीमारी की वजह से। उसको ये समझ आ जाती है कि मैंने तो अब जो है ना वो हमला होना नहीं है, बच्चा होना नहीं है, तो ये ना हो कि बच्चा ना होने की वजह से ये मुझे तलाक दे दे, छोड़ दे या दूसरी शादी कर। ठीक है। ये 7 माह पहले प्रेग्नेंट होती ज़रूर है लेकिन 2.5 महीने बाद ही ये बच्चा जो है वो हो जाता है। लेकिन ये अपने खामद को अब तक की तफ्तीश के मुताबिक घर वालों को नहीं बताती, बल्कि बाकायदगी से इंडस हॉस्पिटल चेकअप करवाने आती जाती है जी कि बच्चे के हवाले से मैं चेकअप करवा रही हूँ। ठीक है। अब सोशल सिक्योरिटी से बच्चा उठाना, इंडस हॉस्पिटल सब्ज़ादार में लेके आना, यहाँ पे एक फ़ेक कार्ड बनवाना, ये सारा उसने ये शो किया कि ये बच्चा मेरा पैदा हुआ है और पैदा भी इंडस हॉस्पिटल सब्ज़ादार में हुआ है। सबूत के लिए उसने एक कार्ड एक बना लिया फेक नंबर पे। लेकिन वो घर वाले तो इसी बात में इतने खुश हुए जी कि बच्चा अल्लाह ताला ने दे दिया है। वो घर गए, उसने नाम भी रख लिया, उसने के बाद उसने जनाब वो अकीका भी कर दिया, रिश्तेदारों को बुला के खुशी भी कर दी। अच्छा। असल बात का जो इल्म है वो सिर्फ और सिर्फ उस बीबी को था कि मैं ये बच्चा कहाँ से लेके आई। ठीक है। लेकिन इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमारे जो सीनियर अफसरान हैं उन्होंने हमारी मदद भी की, हमारी रहनुमाई भी की। जिस मौके पे भी हमें ज़रूरत पड़ी हमें जो है ना वो टेक्निकल असिस्टेंस मुहैया की गई और हमें पूरा बैकअप किया गया, हौसला अफजाई की गई। और ये एक जो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से लाहौर पुलिस ने, सब्ज़ादार ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ने मिल के इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। औरत को बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार कर लिया गया है और आगे जो भी सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इसको जो है ना वो दुरुस्त तौर पे जो है वो हम चलान अदालत करें। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब ये बताएं कि यकीनन इसमें आपकी महारत और आपकी काबिलियत जो है वो नज़र आती है कि आपने चंद दिनों में मुलज़िमा को भी गिरफ़्तार कर लिया और बच्चे को भी सही सलामत असल वालिदैन के पास और उनके हवाले कर दिया। मोहसिन साहब ये बताएं कि जो इंडस हॉस्पिटल में आने वाला मर्द और ख़ातून थी वो कौन थे? इंडस हॉस्पिटल में वो फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को। अच्छा। क्योंकि घर वो यही बता के आई होती है अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कि मैं चेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है ना। पहला बेटा भी जो पैदा होता है खामद के बकौल वो भी प्री मेच्योर डिलीवरी में पैदा होता है, कोई 1.5 माह पहले, मतलब 7.5 माह का या 7 माह का। तो अभी भी उनके कागज़ों में इसको 8वां या 7वां महीना प्रेगनेंसी का चल रहा है। अच्छा। तो ये बाकायदा तौर पे फिर उनको ट्रैप करती है। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है उसके मुताबिक कि मैं आई तो चेकअप करवाने थी लेकिन डिलीवरी हो गई। अच्छा। और चूंकि 4-5 घंटे गुजर चुके होते हैं घर से निकले हुए उसको, तो वो तो इस बात को सच समझ लेते हैं। तो आप ऐसा करें जी कि पैसे लेके पैसे कह रहा हूँ कपड़े लेके आप तशरीफ़ ले आएँ और जो है ना वो घर चले जाएँ। वो औरत जो उसकी बेटी है और जो उसका खामद है वो फिर बड़ी खुशी खुशी हॉस्पिटल से आते हैं और फिर आके इसको ले जाते हैं घर। असल बात का तो इसको पता होता है जो ये किसी ने। अच्छा मोहसिन साहब होता ये है कि चूँकि ज़ाहिर है वो मुलज़िमा की बेटी भी है और शौहर भी है, हो सकता है वो इस पूरी वारदात में उसके साथ शामिल हो और ये उनको बचाने के लिए कर रही हो। क्या हतमी तौर पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली गई है और ये भी मुमकिन है कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, बेटी को भी और उसके हस्बैंड को भी? जी बिल्कुल, हमने बेटी को भी शामिल तफ्तीश किया है, हमने हस्बैंड को भी शामिल तफ्तीश किया है। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक तो सरेदस्त ऐसा ही मालूम हो रहा है कि इनका जो है वो किरदार अगवा में नहीं है। ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम CDRs ले रहे हैं, हम इस बंदे की लोकेशन को भी चेक करेंगे, इसके राब्तों को भी चेक करेंगे कि ये पहले ख़ातून के साथ था या नहीं था। बेटी को भी हम जो है ना वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अगर ये दोनों मुलव्वस हुए, अगर इसकी बीवी और खामद और बेटी मुलव्वस होते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको भी जो है ना वो सबूतों के साथ जो है वो हम चालान अदालत करेंगे। और हमारे पास बड़े डेफिनेट जो है वो प्रूफ्स हैं इस औरत के ख़िलाफ़ अभी तक, और हमें उम्मीद है कि हम प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर बड़ा मजबूत केस तैयार करेंगे और ये इंशाल्लाह इसको करार वाक़ई सजा दिलवाएंगे। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, हमने अक्सर देखा है कि लाहौर के बहुत बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स में चंद घंटों के बच्चे जो है इसी तरह से अगवा होते हैं और मुलज़िमा ही इसमें ख़ातून ही कोई मुलज़िमा होती है और वो अपनी बेऔलादी की वजह से किसी की कोख जो है वो
उजाड़ती है, बच्चा ऐसे अगवा कर लेती है। यकीनन ये भी इसी तरह का वाक़या है और इसमें भी जो है वो उसके ससुराल वाले जो है उसको ताने देते हैं या शोहर ताने देता है तो वो किसी ना किसी का बच्चा उठाकर अपने घर ले जाती है। इसमें भी यकीनन इसी तरह से ही हुआ है। क्या इतना मुमकिन है कि एक खातून घर से जब निकले और वो एक सरकारी हॉस्पिटल में जाए और वो टारगेट लेके जाती है उसने कि चंद घंटों की दोस्ती के बाद वो बच्चा अगवा करने में कामयाब हो जाती है? इससे पहले भी वो अटेम्प्ट कर चुकी है, क्या वो ये मानी है? इसके अलावा भी वो दूसरे हॉस्पिटल्स में भी गई है कभी? CDRs हम चेक कर रहे हैं, इसकी बाकायदा लास्ट 3, 4, 6 मंथ तक हम CDR चेक करेंगे कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं। ठीक है। आया ये किसी और हॉस्पिटल में गई है, वहाँ पे इसने ट्राई की है, ठीक है। उस हवाले से भी, उस एंगल से भी मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उम्मीद है कि ये इसका पहला वाक़या है। अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक ये इसका पहला वाक़या है, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहे। हम इसकी CDR की मदद से पूरी तरह देखेंगे कि ये औरत पिछले 6 माह में अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में गई है तो किस हॉस्पिटल में गई है और किस नीयत से गई है। इस मामले को भी इंशाल्लाह हम जो है ना वो तफ्तीश के अंदर लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, आप हमारे देखने वालों के लिए, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं और अक्सर हमदर्दी जतला कर बच्चे को गोद ले लेती हैं ख़वातीन, या जो वहाँ पे ख़वातीन हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं उनसे दोस्ती कर लेते हैं और बाद में बच्चा जो है वो अगवा हो जाता है, इसमें लोगों की ज़िम्मेदारी किस हद तक है कि वो ऐसे लोगों से जो है वो रहे, अलर्ट रहे, कोई इस तरह की बेवकूफ़ी ना करे कि उनको अपनी औलाद से हाथ धोना पड़े? मैं ये समझता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रा इंतज़ाम ज़्यादा अच्छे होते हैं, केयर का लेवल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। सरकारी हॉस्पिटल में वालिदैन के लिए ये मैसेज है कि अगर डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो आप किसी सूरत में किसी अननोन अजनबी बंदे पे एतबार ना करें। कोई बच्चा कोई आके आपको कहता है जी बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा जो ना वो बड़ा अच्छा है, तो बच्चे को प्यार करने की कोशिश करें, तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जिस बंदे को आप जानते नहीं हैं आप उसको बच्चे के नज़दीक ना आने दें। ये अगवाकार, ये इस तरह के लोग, या मैं बुनियादी तौर पे इनको कहता हूँ कि किसी भी हाल में इस तरह की हरकत करने वाले बंदे जो हैं उनका तरीक़ाकार यही है कि ये बिल्कुल शीशे में उतारते हैं, प्रॉपर उनके साथ जो है ना वो दोस्ती तलक वास्ता बनाने की कोशिश करते हैं और जब वो एतमाद में आ जाते हैं तो तब वो इस तरह की हरकत करते हैं। इस केस में भी यही हुआ है कि उसने 4 घंटे लगाए हैं। ठीक। औरत को उसने बुनियादी तौर पे मुकम्मल तौर पे अपने एतमाद में लिया है, एतमाद में लेने के बाद उसने बच्चा उससे हासिल किया है और अब वो तो औरत एतमाद में आ चुकी थी कि ये मेरे साथ है, सुबह से इसने कहाँ जाना है, बच्चा लेगी, और जब उसको बिल्कुल मौका मिला तो वो ले गई है। वालिदैन से यही गुजारिश है कि कोशिश करें, बल्कि यही करें कि किसी अजनबी को जिसको वो नहीं जानते अपने नौमौलूद बच्चे के पास ना आने दें। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें जुर्म करने वाली खातून चंद घंटे के बच्चे को अगवा करने के बाद इतने बड़े बड़े आंसू बहाकर खुद को मजलूम जाहिर करती है। इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मुद्दई क्या कहते हैं और वो माँ क्या कहती है, और अगवा करने वाली खातून का मौक़िफ़ क्या है। ये सब कुछ आपको इस प्रोग्राम में दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।